بی میں جی پڑھیے 50 سال ہو گئے. پڑھیے پلیز. میں عرض کرتا آرٹیکل 212 212 وہ تو ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز کے لیے. اسی کی پڑھیے پلیز. Article 212 Administrative Courts in Tribunal 1. Notwithstanding anything herein contained, the appropriate legislature may by act provide for the establishment of one or more administrative courts or tribunals to exercise exclusive jurisdiction in respect of a matters relating to terms and condition of persons who are or have been in the service of Pakistan, including disciplinary matter. یہ سروس ٹریبونل ایکٹ کے 1973 میں پلیز آپ اپنے کام کی بات کیجیے. میں جو عرض کرتا ہوں بی پہ آ رہا ہوں جو میرا مقصد ہے. Matters relating to claims arising from tortious acts of government or any person in service of Pakistan or of any local or other authority empowered by law to levy any tax or cess and any servant of such authority acting in the discharge of his duties as such servant are. میری سرگزارش یہ ہے کہ آئین نے ایک حل دیا ہے جو میں نے ہمارے تھرو آؤٹ ہو رہا ہے. میں خود ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہوں وائل ان سروس. لا اینڈ جسٹس کمیشن کا کام تھا کہ وہ ریکمینڈ کرتا گورنمنٹ کو ایک لا بنانے کا لیجسلیچر کے لیے. وہ نہیں ہوا. اور اسی طرح فیڈریشن بھی اپنی ڈیوٹی میں فیل ہوئی 50 سال. دیکھیے آپ کس گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں؟ میں 21 گریڈ میں. تو یو آر ناٹ آرگیوئنگ اینی تھنگ. آئی کین انڈرسٹینڈ what you want from the court. Yes. میں سر یہ آئی ایم انفارمر آف دی کورٹ. What do you want us to do? Exactly. میں کہتا ہوں کہ فیڈریشن کو یہ تاکید کی جائے کہ وہ لیجسلیٹ کرے تاکہ یہ جو عدالتوں پہ بوجھ ہے مسنگ پرسنس کا روز پٹیشن ہائی کورٹ میں وہ تو کمیشن بنا ہوا ہے نا اس نہیں سر وہ کمیشن ڈس اپیئرنس کا. وہ کمیشن میں جب جوائنٹ سیکرٹری تھا وہ میں نے گزارش اس وقت جب کون سا کمیشن بنا ہوا ہے ذرا بتائیے. یہ انفورس ڈس اپیئرنس بتائیے نا کس صفحے پہ ہے کون سا کمیشن بنا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا ہے. وہ میلارڈ کی آبزرویشن آپ بتائیے نا. آپ بتائیں نا. میں کہہ رہا ہوں منسٹری آف انٹیریئر نے کمیشن بنایا ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج. کون سا جج ہے؟ جسٹس جاوید اقبال صاحب. اس کا نوٹیفیکیشن ہے. وہ نوٹیفیکیشن ہے ہوا ہے نا وہ کام کر رہا ہے. بٹ لا وہ جو آئین پرووائڈ کر رہا ہے وہ فورم موجود نہیں ہے. ریمیڈی لیس چھوڑا ہے ان فیملیز کو. اور یہی گزارش ہے کہ ان ریسپونڈنٹس کو یہ عدالت نے نوٹس کر کے میں میرٹ پہ بھی آرگو کر لوں گا. یہی میری پٹیشن ہے. اگر یہ ٹارٹیس ایکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا انفورس ڈس اپیئرنس سے تعلق نہیں ہے. یہ تو اگر ٹارٹ کے اندر کوئی فرض کیجئے ہرجانہ کمپنسیشن اس کے حوالے سے یہ چیز ہے. یہ تو وہ ہے جب وہ سامنے ہوگا اور وہ کلیم کرے گا کہ لا آف ٹارٹ کے تحت مجھے کمپنسیشن یا ڈیمیجز چاہیے گورنمنٹ سے یا سول سرونٹ سے یا گورنمنٹ سرونٹ سے. ایگزیکٹلی جی. تو وہ فیملی تو ریمیڈی لسٹ ہے نا جن کی ڈس اپیئرڈ ہو گئے. You are a grade 21 officer. Yes, I was. So please tell us what should we do. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس سول پٹیشن کو نمبر نہیں لگایا. لگا دیا نا. آپ سن رہے ہیں. اچھا جی. نہیں رجسٹرار آفس نے خود سوئے موٹو ایک ایکشن کے کورٹ کا رول پلے کیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے بہت اہم. آپ بات دیکھیں. اگر آپ ہم ساری ٹیکنیکل جو آبجیکشنز تھے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے. اسی لیے یہ کیس کورٹ میں لگا دیا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو بحث کروں گا ٹیکنیکل آرگیومنٹس پہ. نہیں میں ہم تو آگے بڑھ چکے ہیں. آپ ہمیں واپس لے جانا چاہتے ہیں. اب جی میری گزارش اب ہم آپ سے ابھی تیسری دفعہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ برائے کرم ہمیں بتائیں. ہم یہ اقدام کر دیں. ہم کر دیتے ہیں اگر ہمیں سمجھ آئے گی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو فیڈریشن کو میں نے پارٹی بنایا تھرو سیکرٹری لا اینڈ جسٹس منسٹری ان کو اگر نوٹس ہو جائے اور لا اینڈ جسٹس کیا ان سے کہیں کہ یہ کر دیں. وہ بتائیے نا ہمیں ذرا. ہماری معاونت کیجیے نا. لیجسلیٹو بل انہوں نے بنا کے پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے کہ آئین کی منشا یہی ہے. ایک سیکنڈ یہ بتائیے نا کہ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سینئر بیوروکریٹ ریٹائر ہوئے ہیں, کیا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے پارلیمان کو کہ قانون سازی کرو؟
कर सकती है या नहीं कर सकती है? जब नहीं, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज आप जवाब दे दीजिए ना। नहीं कर सकती है। कर सकती है? हाँ बिल्कुल। बताइए कौन से शिक के तहत? नहीं, अच्छी बात है, हम सीखेंगे। बताइए कौन सी शिक है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक भाई शिक बताइए ना, आइन की बहुत सारी जजमेंट्स भाई, आप हमें आइन की कोई शिक बता दीजिए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आइन ने अमेंडमेंट कर दी है 1974 में। बताइए ना कौन सी शिक है कि हम ये हुक्म दे सकें कि कानून साजी करें। हम करेंगे, फिर अच्छी बात है, बताएं हमें। यही मैं इंफॉर्मेशन के लिए ले की है इंफॉर्मेशन। अगर ये समझा जाए कि ये आप कर सकते हैं, मेरी तो ये गुजारिश है कि उनसे पूछा जाए 50 साल हो गए क्यों लेजिस्लेट नहीं किया। किससे पूछें? ये पार्लियामान से? पार्लियामान से नहीं की, मैंने गुजारिश की फेडरेशन की पार्टी मैंने बनाया, लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्ट्री है वो, लॉ एंड जस्टिस कमीशन, दे आर माय रिस्पोंडेंट्स। लेजिस्लेचर तो मेरा रिस्पोंडेंट्स केस में नहीं है। गुजारिश है कि लेजिस्लेशन कौन करता है? सरकार करती है या पार्लियामान करती है? प्रपोज करती है जी सरकार। नहीं, कोई भी कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कैन डू इट। नहीं, सरकार करती है। नो, नॉट एट ऑल। लेजिस्लेटिव बिल सरकार ले। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर मैं रहा हूँ उस मिनिस्ट्री। आपको कुछ पता नहीं है ना, फिर मैं अगर सुन तो लेना। मैं गुजारिश, लेजिस्लेशन एक अदना मेंबर भी कर सकता है। यस, लेकिन अगर अदना मेंबर न करे तो आईन का जो रियासती इदारा है जिसकी ड्यूटी है वो ले करेगा। लेजिस्लेटिव बिल तो ले करना है किसी। आपने कोई ड्राफ्ट बनाया, पेश किया? मैं पेश कर देता हूँ, हुक्म दे आप। हम हुक्म कोई नहीं देंगे ना। आप आए हैं हमारे पास पिटिशनर। मैं बिल्कुल मैसेज कर सकता हूँ, मैं बिल नहीं, कोई आप हमें कोई आइन कोई कानून की बात करें, नहीं तो हम दूसरों को सुने जरा। बिल्कुल, तो भी सुन लीजिए। अच्छा, तब चलिए फिर आप तशरीफ रखें। हमें आपकी बात कुछ खास समझ नहीं आई है, क्योंकि जहां तक हमारी समझ है, हो सकता है गलत हो, वो है कि हर इदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लियामान को हुक्म नहीं दे सकते हैं कि लेजिस्लेशन करो, लेकिन या अगर आप हमें रहनुमाई करें इस बात पे कि हम ऐसा हुक्म कर सकते हैं। अगर एक आप जरा रियासती इदारे ने आंखें बंद की हों तो किसी ने, मैं एज इन्फॉर्मर कोर्ट के पास आया हूँ, यही इन्फॉर्मेशन लॉ स्ट्राइक डाउन तो कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट से कोई मुतजादम हो। वो स्ट्राइक डाउन करने के पावर है वायरीज ऑफ द लॉ। क्या ये देयर इज नो लॉ टू चेक द वायरीज। वो देखिए, कल आप ही हम पे तनकीद करेंगे कि हमने हुक्म दे दिया पार्लियामान को कि कानून साजी। पार्लियामान को नहीं कह रहा मैं, फिर किसको हुक्म दें? जिसका था काम, उसने बिल ले करना था, वो था फेडरेशन, और उसके लिए एक मिनिस्ट्री बहुत बड़ी बनी है। चलिए ठीक है, और लॉ एंड जस्टिस कमीशन बनाया है। कोई और बात कीजिए ना, मैं समझ आए बात। ये तो एक और है, एक सर आपसे मुतालिक एडमिनिस्ट्रेटर, एक CPLA 875/2023 मेरी है, यहाँ 13 नवंबर को लगी, डी लिस्ट किसी ने कर दी। मैंने जनाब को कंप्लेंट आपके चेंबर में की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो इंफ्रक्शस हो जाएगी। मैं निगरान वजीर था, डी नोटिफाई हुआ, मैं उसके एक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ आया हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया। आप जरा ऐसी बातें ना कीजिए ना। पहली बात, आपको मेरे चेंबर आने की कोई जरूरत नहीं है। आप जरा खामोश रहिए, जरा सुन लीजिए बात। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गैर मामूली, ये बिल्कुल बात गलत है। जी। दूसरी बात, ऐसी कोई दरखास्त मेरे पास नहीं आई है। जी ठीक है, अगर आप ये फोरम इस्तेमाल करेंगे अपने जातियात के लिए, वो अलग बात है। नहीं जातियात तो आप क्या, वो जो पिटिशन आज लगी नहीं है, अगर आप कानून पढ़ लीजिए जरा सा, तो आप जरा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? जी सर। कानून बन गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। जरा सी जहमत कीजिए और उसको खोल के पढ़ लीजिए। अगर आप कोई अर्जेंट एप्लीकेशन देंगे, उसका तरीकेकार लगा हुआ है और वो लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आकर के वो वाला केस आर्ग्यू कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो गैर मुनासिब बात है कि आप चिंबर आए, मेरा केस लगा हुआ है, मैं वजीर हूँ। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये आप जो केस लगा हुआ है वो चला लें। अगर वो आप नहीं चलाना चाहते हैं, आपको कोई जाती मसला है, तो उसका तरीकेकार अलग है। हम जो चलते हैं, हम लिस्ट से चलते हैं कि भाई ये केस हमने लगा दिए, क्योंकि एक मसला था मिसिंग पर्सन्स का,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہم مسئلہ ہے, اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اب آپ کا کوئی ذاتیات کا مسئلہ ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کہ آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں سر, میں تھا منسٹر اور ڈی نوٹیفائی ہوا نگران حکومت میں یہاں اپیل میں ہوں, اور اپیل انفرکچوس ہو جائے گی, اسٹگما مجھ پہ لگا رہے گا. اس بات کا اسٹگما لگے گا. ایک میں ڈی نوٹیفائی کیوں کیا آپ کو؟ واٹ واز دی ریزن؟ اس کی ریزن ایک میرٹ پہ اور نان مینٹینیبل ڈکلیئر کر کے, آپ کو ڈی نوٹیفائی کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت سروس میں تھا جبکہ میں ریٹائر ہو چکا تھا, میں سروس میں نہیں تھا, اور مجھ پہ آرٹیکل 63 لگایا جو 2 سال کی شرط رکھتا ہے. پلیز یہ کیس ہمارے سامنے ہے جی, وہ آپ کے نہیں, آپ ماشاءاللہ ایسی بات اب آپ یہ زیب نہیں دیتا ہے نا. گریڈ 21 آپ ذرا گریڈ 21 کا آفیسر ایسی بات کر رہا ہے, یہ کیس چلا رہے جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. لارڈ, میں آپ سے پہلی دفعہ یہاں ہی مخاطب ہو سکتا ہوں, پھر بعد میں تو نہیں. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ انفرکچوس ہونا ہے, اور میں نے اس میں ارجنٹ کی درخواست بھی دی ہے, اسٹے اپلیکیشن بھی, اور لگا بھی تھا اور ڈی لسٹ ہوا ہے. میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. تو جس دن لگا تو اس دن آپ کہہ دیتے ہیں بات. میں سر, میں تو نہیں یہاں پہ. اچھا, لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی مسئلہ کوئی نہیں, ذاتی نہیں ہے میرا. نہیں, آپ دیکھیں نا, ہم یہ جو میٹر ہے نا پبلک انٹرسٹ میٹر میں ہم لارڈ, میں کوئی ذاتی اگر ہوتا تو میں اتنی پٹیشن. تو آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ میں نہیں بننا چاہتا. ایک چیز ہے, میں نہیں بنوں گا, میں استعفیٰ دے. Honorable Judge has just pointed out that she was probably one of the authors of the thing. So it is inappropriate for you to, please don't keep telling us. Please don't interrupt. Have some courtesy with, otherwise we will never make any. Please, can you wait? Yes, sir. How many times will you say please? Okay. Right. Please. If but she just informed me that she was the person, the judge probably in the Peshawar High Court. So it's not appropriate to discuss that matter. Okay. So please don't discuss your personal matter. If you're interested in missing persons, we'll certainly hear it. Thank you. Okay. So now can we hear someone else? Okay. Thank you, my lord. Thank you. Ji, Mr. Shoaib Shaheen. مائی لارڈ, ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرا سول مسلینیس اپیل لگی ہوئی ہے 161, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ مین پٹیشن نمبرڈ ہونی چاہیے تھی. آبجیکشن لگا دیا جی, اس وقت آفس آبجیکشن کے اگینسٹ ہے یہ, which is چلیں ٹھیک ہے. دس میٹر آف پبلک انٹرسٹ ہم مسترد کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آفس آبجیکشنز اسی لیے ایکچولی وہ the matter in my absence some things happened. So I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing these cases. اب اصولاً تو کرنا چاہیے تھا کہ چیمبر اپیل سنی جاتی, جی پھر اس پہ آرڈر ہوتا, پھر وہ لگتا. تو ہم نے وقت بچایا اور آپ کا کیس فوراً لگا دیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, میں تو گریٹفل ہوں. اب آپ اپنا کیس بتائیے. جی میرا کیس مائی لارڈ یہ ہے, ایک سیکنڈ آپ نمبر بتائیے. نیل جی وہ نمبر نہیں لگایا. ٹھیک ہے, وی ول آرڈر اٹ ٹو بی نمبرڈ, اگر آپ وی ول انڈرسٹینڈ اٹ. مائی لارڈ جی اوکے جی. So we now seeing the main petition, not the appeal. جی ٹھیک ہے جی. مین پٹیشن مائی لارڈ, مین پٹیشن میں میری جو گزارشات ہیں وہ میں اگر پریئر میں آ جاؤں جو میں سبمیشن پیش کرنا چاہتا ہوں, تو ہمارا یہ ہے بیسیکلی جو مسنگ پرسنس اور abuse of authority. One second at a time. So this was filed by Mr. Itizaz Ahsan himself. My lord, he is the petitioner. Sure. Okay. Right. یہ پیراگراف 8 میں بتائیے, پیراگراف 8 پڑھیے, پیج 4 پہ. My lord, that the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, provincial minister, leader of the House. Federal minister
When was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. अब वो date चुके इसमें लिखी नहीं हुई fact है, मैं I cannot say anything. So why is this relevant? Anyways, okay, now what is the concerns? My lord, para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity, and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in, my lord. So what do you want us to do? जी मेरा prayer sir. आपकी prayer जो है जी page 32 पे. page 32 के ऊपर है. My lord, it is most respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. ये commission of inquiry कौन सा है जरा बताइए? Yes sir, ये notification है my lord before your lordship's file on page 131. 131. My lord. जी. Read it please. My lord. Whereas on expiry of period allowed to the When commission, is this notification dated? ये है सर 1 March 2011. This was the first notification पर. नहीं सर इससे पहले एक और था, उसके बाद ये आया, फिर आगे आज तक अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है. One second. So this is which government notification? ये फेडरल गवर्नमेंट. Who was in government then? ये 2011 में पीपल्स पार्टी का जमाना था. 2008 से लेकर 2013 तक दी देन प्राइम मिनिस्टर प्रोबेबली यूसुफ रजा गिलानी साहब, और उसके बाद परवेज क्या नाम था, राजा परवेज अशरफ साहब. तो ये उस जमाने में हुआ. So you don't want this, you want this notification struck down? I don't want, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वो काम जो इनकी जिम्मेदारियां थी वो एडिक्वेटली नहीं कर पा रहे, ना कर सकते हैं, और इन्फोर्समेंट भी सच, क्योंकि ये 2011 से लेकर आज 2023 में बैठे हैं. सो फार एज टिल टुडे उनके रिपोर्ट के बकौल, वो मैंने नोटिफिकेशन भी इसमें लगा दिया है, जो रिपोर्ट है उनकी, कुछ लोगों के ऑर्डर्स इन्होंने किए हैं, बट सो फार एज उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 2200 से ज्यादा अफराद वो हैं जो मिसिंग पर्संस में लोग अभी तक हैं जिसके बारे में कुछ नहीं पता. और जो डिस्पोजल किए हैं, रिपोर्ट में कहा है कि कितने रिकवर हुए हैं. जी वो रिपोर्ट मैंने रिप्रोड्यूस की है. तो बता रहे हैं, ये भी बताइए ना कि रिकवर हुए हैं. नहीं उसमें लफ्ज रिकवर नहीं लिखा, लेकिन जो रिपोर्ट है मुलाजा फरमाए पेज नंबर 10 पे मिलो. पेज 10 पे कैसे? जी मैंने रिप्रोड्यूस किए मतलब. अच्छा रिप्रोड्यूस. ये तो 2023 की रिपोर्ट है. जी सर 2023 की जो हमारे पास अवेलेबल थी ऑन. नहीं मजीद तो वो खुद बता सकते हैं. तो ये तो जो नोटिफिकेशन है माय लॉर्ड, ये तो आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी. जी सर. जिसके वजीर थे एतजाज हसन साहब खुद. शायद उस जमाने में वो नहीं थे. शायद राय तो ना करें ना आप. पिटिशनर बिफोर अस, आपको पता होना चाहिए बातें ना. माय लॉर्ड आपने कहा आई एम अ फेडरल मिनिस्टर, so he is in the people's party, isn't he not? जी still he is in people's party. So ये अपनी हुकूमत की नोटिफिकेशन को मुस्तरद करना चाहते हैं. अगर गलत थी तो मैं लॉर्ड भाई हम आपसे पूछ. जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर. अब आप बता दें हम करें क्या इसके अलावा. ये आप कहते हैं ये इसी की, तो कम से कम ये तो नोटिफिकेशन अच्छी बात है कि कमीशन इंक्वायरी तश्कील दी गई. आप चाहते हैं इसको मुस्तरद कर दें? नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 13 साल काम किया है इन्होंने, और जो मैं रिपोर्ट जो आपको सामने में पढ़ रहा था मैं वो पढ़ दूं, फिर सर मैं गुजारिशात पेश करता हूँ. नहीं, इसमें आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट दी फॉर्मेशन ऑफ कमीशन मेंशन इन पैराग्राफ 5 ऑफ द ग्राउंड, वो बताइए ना. वो आप यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ. पैराग्राफ कौन सा है जिसमें जो आप कमीशन बनाना चाहते हैं? जी सर. सर ये प्रेयर के अंदर जो है ना इनका क्लॉज 4 है रोमन.
Direct the formation of commission mentioned in the paragraph F of the ground. So कौन सा commission में ये commission already है? You want to replace the commission? F बताइए कौन सा? किस पेज पे हो? बहुत सारे F हैं और it's very difficult to read. किसमें लिखा है आपने? ये कौन सा फिर कमीशन बना है वो बताए? पेज 30 पे है. आप चाहते जी हैं? सर वो प्रपोज कमीशन का मैंने दिया है. Honorable Judge of Honorable Supreme Court. जी सर. President of Supreme Court Bar. My lord. किधर लिखा है? So ये page 20. Page 29. जी. F. My lord. इसमें पैरा J से मैं अगर relevant पढ़ना चाहूँगा मैंने. To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number one, independent members, number two, a limited tenure for members, number three, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and four, a definition of enforced disappearance, which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may Are therefore you saying that these people are? They were abducted, kidnapped. After some time. Sir, I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. It is public interest litigation before you. No, देखिए ना, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. ठीक है? Or you have certain other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person? Unless that person is a underprivileged person, that's a different thing. But if you are saying is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court, is he one of those persons? No, my lord. Here you are coming 184.3. My lord. Yes, my lord. देखिए, we take second. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid, may tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you, again, there's certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party, then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you want to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Right. How many times? I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे. आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itazaz Ehsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib then? The next name. He was a political activist. He belonged at that time to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his case before the house.
some TV station that I was kept somewhere, I went somewhere and thereafter पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ मैं अर्ज करता हूँ आप one by one चलते हैं. So then he's also political activist. चले. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. Belonged to the PTI. The then अब now change. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है. सर कोर्ट में इनकी अब चेंज क्या मतलब किस पार्टी में आप? left the PTI, I think शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में या but टीवी हाउस में पेश किया गया. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? No my lord, हम ये कहते हैं. एक सेकंड ठहरिए ना, तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा अगला नाम पढ़िए, ये कौन है? उस्मान डार साहब. उस्मान डार भी my lord, he was also a political activist belonging to PTI. PTI then क्या आप किस पार्टी में? At that time no left PTI but not joined. हम क्या उनको कहेंगे वापस PTI में शामिल हो जाओ? No reason my lord, हम ये नहीं कहते. हमारी जो गुजारिश है सीनियर काउंसिल. सर मैं अर्ज करूंगा ना सर. अच्छा अगला नाम कर लें. आजम खान कौन है? आजम खान, he was a bureaucrat, he was abducted. Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. He can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ. आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम आपको इजाजत नहीं देंगे. नहीं सर, अगर नहीं आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है. अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को ब्यूरोक्रेट्स, my lord points out कि आपने और भी नाम लिए हैं. ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है, मिसिंग पर्संस, ब्लोच फैमिली. मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर. तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है? सर हम ये लोग मिसिंग हैं अभी? नहीं, अब पेश कर दिए गए. तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई? नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपीयर कराया गया. एक सेकंड ठहरिए ना. स्टेट एजेंसी या तो आप एतजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो वो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मुझे मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे. बिल्कुल ठीक. आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं सिर्फ. सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोगों पे प्रेशर है, स्टेट एजेंसीज का प्रेशर है और वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को, ये लोग जिनके नाम शोएब साहब, ये जो आपने जिन लोगों के नाम लिए ये तो असर रसूख वाले लोग हैं ना. सर जुल्म तो किसी पे भी हो सकता है. असर रसूख वाले पे अगर जुल्म हो, अगर वो ना उठ सके तो जनाब ने ही उनको, my lord, अगर किसी पे जुल्म हो, असर रसूख वाला हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी में जैसे उनके साथ उनको बंद किया गया हो, किडनैप किया गया हो, उससे पार्टी तब्दील कराई हुई बाय फोर्स, उसकी एविडेंस आ जाएगी. मैं ये नहीं कहता कि जनाब आज ही ऑर्डर फरमा दे, जो हमारा कमीशन वाली बात थी. तो शेख साहब वो फ्री है ना, किडनैपिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किडनैपिंग हो गई, वापस आ गए. अभी तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम किडनैप हुए थे या हमें बाय फोर्स ले जाके हमसे नहीं कहा. उसमें उस्मान डार ने बोला ये बात शेख रशीद ने बोली. कैपेसिटी में क्यों नहीं आते हैं? अब आपने देखे ना इसमें अपने पेज 3 पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भी नाम लिखा हुआ आपने, PMNN स्टार, आपके अपनी उसमें जो है स्टार कैंडिडेट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जी वेंट मिसिंग. अब PMLN के हैं ये. अब आपके पास अथॉरिटी है कि इतने सारे नाम आपने लिखे हैं? मैं तो वो चीजें उनके नाम जो एफिडेविट्स हैं कि दे आर ऑथराइज्ड, दे आर ऑथराइज्ड यू टू अपीयर ऑन देयर, तो उनका टू दैट एक्सटेंट ग्रीवेंस के वो वापस आ गए, वो रिड्रेस हो गया. लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ
اس کے بارے میں آپ اس کے گواہ ہیں شاہد صاحب. سر پورا پاکستان گواہ ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ ڈائلاگ ادھر نہ کریں, یہ باہر جا کے آپ ٹاک شوز پہ کر لیجئے. نہیں پلیز, اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے اٹھا کر کے, نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ اس میٹر کو سیریسلی نہیں لینا چاہتے ہیں, جو ہم بہت سیریسلی لینا چاہ رہے ہیں اس میٹر کو, اور آپ اس کو اگر سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ بات کہنا, اگر آپ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دوسری پاکستان مسلم لیگ ہے, یہ آپ نے سارے ان کے تو کسی کا آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں. آپ نے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا جب آپ ایک ذکر کرتے ہیں نا, تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے. دیکھیے اب 184 میں اب آپ آئے ہیں میٹر آف پبلک امپورٹنس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے, ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اس بات کی. ٹھیک ہے. اب آپ نے جتنے نام لیے ہیں ان کی وابستگی, آپ نے کہا وہ ہماری پارٹی چھوڑ گئے. بھئی اب اس کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہاوت ہے, آپ اردو میں پتہ نہیں کیسے کہیں گے, if you can't stand the heat in the kitchen, you should not be in the kitchen. ٹھیک ہے, اب ہر زمانے میں کیا کیا گزرا ہے, پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں لوگ گھر آ گئے, اثر رسوخ والے لوگ ہیں, ان کی کوئی ہے گریونس, بائی آل مینس آئیے, عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ باتیں نہیں ہے کہ آپ جا کے بس اس کو ایک اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں چیزوں کو. جینیون باتیں ہیں, آپ نے ان سب کو کیا, اور بیچ میں آپ نے کہیں جا کر کے مسنگ پرسن کی بات کر دی ہے. پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے سر, میں اس موضوع پہ آنے سے پہلے پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے. پیج 6 پہ جی سب کا میں نے الگ الگ سر ٹائٹل دیے ہیں. نہیں پتہ, بتائیں پیج 6 پہ کہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں. ایٹ دی باٹم سر. نہیں اوپر سے پڑھے نا. جی سر. پالیسی آف دی اسٹیٹ. کدھر سے پڑھ رہے ہو؟ یہ سر میں پیج 6 پہ آپ پڑھے نا, دیز پلیز ہیو فالن آن ڈیف ایئرز. پیج 7 پہ, سوری معاف کیجیے, پیج 6 پہ جی, پڑھیں جی. پیج 6 پہ تھا سر, ایٹ دی باٹم پیرا 14. بلوچ مسنگ پرسنز, that the practice of enforced disappearances has historically and disproportionately beleaguered the Baloch people. For decades, the families of the missing persons in Balochistan have held long marches, protested in front of press clubs, and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance. These pleas have fallen on deaf ears. The PTI government introduced a law criminalizing enforced disappearances. Shiri Mazari, a minister at time later, said that the law went missing after it was sent to the Senate. There was no further explanation on what this meant. It was understood that in an... رک جائیے ذرا, ادھر مجھے سمجھا دیجئے. law went missing. پلیز دیکھیں, جب آپ نے بات چھیڑی ہے, اس کو بل لکھنا چاہیے تھا. I'm sorry. تو بل کوئی پیش ہوا, لیکن پیش ہوا, بل کی کاپی کہاں لگی ہے؟ پروبیبلی اس کو وہ نہیں لگی ہوئی, لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے. پیج اگر میں نے فائل پڑھنا تھا, پیج 58 پہ اس کی اسٹیٹمنٹ. آپ بل کی کاپی ہمیں دکھائیے نا. یہ زیادہ مشکل کام تو نہیں ہوگا نا بل کی کاپی لینا, اگر ایک بل ہوا ہے. کوئی خفیہ بل تو نہیں تھا. آپ نے اتنا سیریس بات کر دی, تو وہ ذرا ہمیں دکھا بھی دیجئے نا کہ بل کہاں لگا ہے, کس صفحے پہ آپ نے لگایا ہے. سر پیج 58 پہ اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے, بل کی کاپی نہیں لگی. کس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ شیری مزاری, دی دین منسٹر, جس نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا. پیج 58 منسٹر ایٹ دا ٹائم. جی منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. Did she tender her resignation? Subsequently نہیں, she tender her resignation? At that time no. میں اگر منسٹر ہوں اور اگر میرے بل کے ساتھ یہ حرکت ہو تو میں کیا کروں گا, سر آپ بتا دیجئے. جی سر, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس پہ. نہیں آپ صرف بتائیے نا, آپ کے منہ سے ہم سننا چاہتے ہیں نا. جی درست بات ہے, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے, کوئی شخص جو عہدے پہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں, وہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ کھڑا ہو کے کام کرے تو بہت اچھی بات ہوگی. منسٹر فار واٹ تھی یہ, ہیومن رائٹس. تو بھائی یہ عجیب بات ہے, منسٹر فار ہیومن رائٹس کہہ رہی ہیں کہ میرا بل غائب ہو گیا. جی سوری, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ بات ضرور یہ سینٹ میں غائب ہو گیا, یہی انہوں نے لکھا ہے. سینٹ میں کون تھے, سینٹ کے چیئرمین کون ہیں, تھے یا ہیں؟
बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती हूँ, उसमें ऐसी कौन सी सेनेट में चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं। ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी किसने पार्टी। इलेक्ट किया? ज़ाहिर है सेनेटर्स ने जो अक्सरियती पार्टी थी, भाई आप बता देना शोएब सब पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली बट सब्सिक्वेंटली। एक सेकंड ठहरिए, शीरीन मज़ारी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी, जी जी, चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट ये नहीं लेकिन इत्तेहादी। पूरी बात सुने, जी सर, सिर्फ हम समझने की बात समझ जी, रहे हैं। संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे जी। तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं? पार्टी तो मेरी नहीं थी, हम इत्तेहाद था। हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से, तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया। अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरीन मज़ारी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है। नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ है ना, आपने क्लिपिंग लगाई हुई है, मिसिंग पर्सन बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरीन मज़ारी जी, पेज 58 पे लगा हुआ है। बहुत सीरियस है। जी मैं वही उसी को पढ़ रहा था। नहीं, अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है, जरा बताइए तरीकेकार क्या है, बिल का आइन में कैसे होता है, नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं आप सेनेट से गायब हो गया है, कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद उसके सेनेट बाद से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात नहीं। कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए। 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से। ये 70 introduction of article 70 introduction and passing of bills। जी जी पढ़ लें प्लीज। जी सर। A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. If the bill transmitted to the house under clause 1 is passed with the amendment, it shall be sent back to the house in which it originated, and if the house pass the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. And the custodian of the Senate is? The chairman. Chairman belong to your party? मेरी पार्टी नहीं सर, मेरी तो सिर्फ मेरी You voted for him. वोट किया but not So did you remove him? Did you seek his removal? No, my lord. Did you submit a resolution saying the chairman Senate is making bills disappear which were transmitted to the Senate? That's a very serious allegation, Shoaib साहब। जी मैं सर इस वक्त मैं no, आप इस वक्त आपने तहरीरी तौर पे बात लिख दी है ना हमारे सामने जी, आपने सोच समझ के पिटिशन ड्राफ्ट की, माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील भी हैं, सियासतदान भी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो एलिगेशन बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है, तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है। नहीं सर, मैं जो ये इसकी जिम्मेदारी किस पे आप बताएं ना, हम उसकी तायुब करने हैं। इस पे तो मैंने अभी जो मेरा प्रेयर है शायद इस पे मैंने नहीं डिस्कस किया, मैंने बैकग्राउंड दिया है कि जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जब ये कहा जाता है कि कोई भी इन्फोर्स जबरदस्ती को किसी को उठाएगा तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए, तो जो वो नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ वो गायब कर दिया गया। दैट वाज देखिए फैक्ट, चलिए हम आपकी बात के साथ चल रहे हैं, ये गायब किसने किया? चेयरमैन सेनेट ने गायब किया है। मैं उसको एविडेंस तो हमारे पास नहीं है, बट इन द प्रोसेस कहां से हुआ, किसने किया, ये फैक्ट आप है। बता देना, जो रखवाला है घर का वही गायब कर सकता है ना। वो रिस्पॉन्सिबल तो हो सकता है, वो डायरेक्टली शायद वो गायब ना करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनली उसके ऊपर आती है कि उनको देखना चाहिए तो आपने था। तो पार्टी क्यों नहीं बनाया है? अगर आप इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं संजरानी साहब के खिलाफ, तो उनको कम से कम पार्टी तो बनाए ना, या तो ये जिक्र ना करें।
آپ نے ایک ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک بل غائب کر دیا. یہ میرے خیال میں تو بہت، یہ تو اس کے زمرے میں شاید آ جائے، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو کئی اخبار کی سرخی نہ لگ جائے، مگر یہ بہت ہی سیریس بات ہے. یا تو آپ اس کو مذاق سے سمجھ رہے ہیں یا آپ اس کو سیریسلی لیں، دونوں میں سے ایک بات کریں نا. اگر آپ اس بات کو سیریسلی لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے لکھ کے کہا ہے، تحریری طور پہ کہا، اور ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک سینئر وکیل کی بات کو نظر انداز کر دیں، جو کہ ماشاءاللہ ان کا اپنا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، ریپوٹیشن ہے پاکستان میں. تو یہ اس بات کو پھر حتمی آخر تک لے جائیے نا. پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. اگر جناب مناسب نہیں، ہم مناسب کچھ نہیں سمجھیں گے. دیکھیے آپ ایسے ایلیگیشن لگائیں، اور وہ بھی دیکھیے وہ وقت وہ تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. یہ تو یہ بات عجیب بات ہے کہ ایک منسٹر، فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بل غائب ہو گیا. بھئی اگر ایسی بات ہے، اس کا مطلب ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے نا. سینیٹ نے کی ہے، چیئرمین سینیٹ نے کی کہ بل ہی غائب کر دیا. پھر اسے ووٹ آ کے مسترد ہو سکتا ہے، مگر غائب تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر انہوں نے غائب کر دیا تو یہ کتنا بڑا، اب اس کیا آپ ہی لفظ استعمال کر لیں، آپ مناسب سمجھیں گے. دیکھیے جب غلطی اپنے گھر میں بھی ہو نا، اس پہ انگلی رکھیں. ہم نے ایک نیا اصول اپنایا ہے سپریم کورٹ میں، جب ہم غلط کرتے ہیں ہم کہیں گے. ایک کیس میں نہیں، میں نے کئی کیسز میں کہا ہے کہ یہ کیسز نہیں لگے، یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہم نے غلط کیا ہے. تو اگر آپ صرف ایک سیاسی مقاصد کے لیے کیسز لائیں گے ہمارے پاس، وہ ایک الگ بات ہے. یا پھر پوری بات کیجئے، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی مجھے تو کبھی بل آیا ہی نہیں. یہ شب صاحب یہ ریکارڈ سے غائب ہو گیا تھا یا فلور پہ آئے نہیں ہے ڈسکشن کے لیے؟ اٹ واز ناٹ ٹیبل. اس میں تو جو شری مزاری صاحبہ ہے، اس کی رپورٹ کے اوپر، اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر میں نے ریلائی کیا ہے. وہ یہ کہتی ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے ادھر گیا، پیج 58 پہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس کے بعد آگے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، but it was missing after it was sent to the کرمنل Senate. لا امینڈمنٹ بل تھا، سیکشن 52B PPC کے اندر ایڈ ہونا تھا. اس کے اندر کچھ کمپنسیشن اور کچھ سزائیں تھی اگینسٹ جو ہے ڈس اپیئرنسز کے. وہ آپ کا جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے، اٹس اے ویری سیریس میٹر. ویسے جب سینٹ میں گیا، وہاں سے گیا، وہ سینٹ سے غائب ہو گیا. That is her statement. اور یہ لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے، یہ 21 اکتوبر 2023 کے اخبار کی ہے. تو یہ مسنگ پرسن کا کیس سے مسنگ بل کا کیس بن گیا جی، انکلوڈنگ دیٹ مسنگ بل کیس. وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور اس میں میلوٹ میں نے باقی جو ریفرنسز دیے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیں سر. اس میں جو بیوروکریٹس کے علاوہ اس بل کی کاپی تو ہمیں دکھا دیں نا، کیا مانگ رہے تھے اس میں آپ؟ سر وہ میرے پاس ہے نہیں، پروبیبلی اس میں لگی نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاس ہو گیا یا نہیں پاس ہوا. نہیں سر، نہیں ہوا، کیونکہ لا میں تو نہیں آیا. اب دیکھیے، اب ہم آپ کا کام کر رہے ہیں. مائی لارڈ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہ بل جو ہے نا، یہ دیکھیے یہ بل ہے شعیب سائن صاحب، یہ بل جو ہے نا، یہ کدھر سے آپ نے پرنٹ آؤٹ کیا؟ یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے. جی تو تھوڑی سی کر لیا کریں نا، زحمت فائل میں چونکہ نہیں تھا. نہیں، زحمت تھوڑی سی کر لیں نا. ہمارا کام تو نہیں کہ اب یہ چیزیں نکالنے آپ کے لیے. اب اس میں مائی لارڈ نے صحیح کہا ہے کہ 52B ایڈ ہونا تھا اس میں پاکستان پینل کوڈ میں، ٹھیک ہے، اور 512 بھی ایڈ ہونا تھا پاکستان پینل کوڈ میں، ٹھیک ہے. 513 514 یہ سیکشنز ایڈ ہونا تھے. 5 years کی جو امپریزمنٹ اور 5 lakhs کمپنسیشن. یہ بل تو سبمٹ کیا ہے شیخ رشید احمد نے. آپ نے کہا شاہ حسین مرزاری نے کیا ہے، اس پہ تو لکھا ہے منسٹر فار انٹیریئر شیخ رشید احمد. پروبیبلی انہوں نے، لیکن جو یہ ہم نے ہمارے سامنے جو پرنٹ آؤٹ ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے، اس میں تو نام آ رہا ہے منسٹر کا، آ رہا ہے شیخ رشید احمد. جی تو اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پاس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ نہیں سر، یہ تو نہیں کر سکتی. اچھا، تو پھر یہ تو شیخ رشید احمد ہیں. جی سر، لیکن نہیں، یہ آپ نے دیکھا یہ؟ جی سر، ابھی مجھے میرے لڑکے نے لا کر کے دیا ہے.
تو یہ فائل میں چونکہ تھا نہیں، مجھے رات ہی فائل ملی ہے میلوڈ، ڈان میں نے کی بھی رپورٹ دیکھا. کے مطابق بھی وہ کہتی ہیں وی ہیڈ پریپیئرڈ. ہاں لفظ، ہاں آئی کا لفظ نہیں لکھا، وی کا لفظ لکھا. شری مزاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ. ایک اور پرنٹ آؤٹ دیں اس کے 2 اور. یہ میرے پاس ایک کاپی ہے، میں نہیں ہم نے لے لیا ہے، خود ہی لے لیا پرنٹ آؤٹ. نہیں ہے یہ پرنٹ آؤٹ لیا یہ آپ میں نے آپ دیکھیں سر. آپ دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے مل جائے گا. بات بتانا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟ جی سر، اس میں میری جو گزارش تھی کہ یہ جرنلسٹ کی بھی آپ نے ذکر کیا پیج 11 پہ. جی عمران ریاض کا. یہ کون ہے؟ یہ سر ہی واز اے جرنلسٹ، اینکر پرسن بھی رہا ہے، اور مسنگ ہے. نہیں سر اب آگے ہے پیج 2. لیکن اس کی حالت تو بہت چینج تھی اور ہی کوڈ ناٹ ایون اسپیک، اور کئی مہینے. دیکھیں یہ آپ ذاتی طور پہ گواہی دے رہے ہیں شعیب صاحب، یہ ذرا بات سوچ کے کریں نا سر. یا تو ان کا کوئی حلفیہ بیان ہو یا ان کو پارٹی بنائیں. اگر ملوڈ میں سب کو پارٹی بنا دیتا ہوں. کتنے جرنلسٹ کا آپ نے ذکر کیا بتائیے؟ میں نے مینلی ایک کا کیا ہے، عمران ریاض کا کیا ہے سر، کیونکہ ایک تو وہ ارشد شریف کا میٹر تھا. آپ نے 2 جرنلسٹ کا شاید نام نہ سنا ہو. انہوں نے کہا کیا کہ یہ عمران ریاض صاحب نے مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ کہ انہوں نے یہ تو پتہ چلا، لیکن انہوں نے کہا جی بس خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں. اور یہ تو جو پولیس نے خود لکھا، یہ پیج 11 اور 12 پہ اگر ملاحظہ فرمائیں جو پولیس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، دیر آفٹر فار. نہیں پولیس کی بات تو آپ نہیں مانیں گے نا. آپ عمران ریاض صاحب نے کیا ذکر کیا، خود کیا کہا؟ عمران ریاض کا تو بس وہ جو آیا کہ جی میں واپس سیفلی واپس پہنچ گیا ہوں. He could not speak for many months, for some weeks properly. اب بول سکتا ہے. عمران ریاض صاحب اثر رسوخ والے شخص ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو میں مانتا ہوں کہ ہیں. اچھا آپ شاید اس کمرہ عدالت میں شاید 2 اثر اور رسوخ والے جرنلسٹ شاید نہ ہوں، ان کا آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میرے پروبیبلی نالج میں اس وقت نہیں ہوگا. نالج میں ایک کا نام ہے مطیع اللہ جان. جی وہ اس وقت آئے تھے، واپس ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جی بالکل ہوئے تھے. کس کی حکومت تھی؟ حکومت پروبیبلی پی ٹی آئی کی تھی. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن میں؟ اس لیے نہیں کیا کہ سر وہ چونکہ اس وقت انہوں نے تو نہیں کہا کہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تفریح پہ گیا ہوا تھا کہیں. نہیں سر، کورٹ انٹرونشن پہ آفٹر 1 day he was recovered. آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا ان کا؟ سر ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ آج کا لائیو ایشو نہیں ہے. آج کے جو لائیو ایشو ہے میں نے ان کو ذکر کیا. لائیو ایشو آپ نے بنایا ہے وہ بھی تو سر ان کو بھی سر ایڈ فرما دیں جو کمیشن بنے گا. all those persons who are went missing. کریں نا، ایک اور بھی جرنلسٹ ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے. ان کو بھی کچھ مار پیٹ ہوئی تھی ان کی. جی اسد تور کی ہوئی تھی میرے نالج میں. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن؟ سر کوشچن یہ ہے کہ وہ چیزیں تھیں ایسے نہ دیکھیے، اگر آپ نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا نہیں، دیکھیے نا ایسی بات نہ کریں. یہ دونوں جرنلسٹ سے آپ نے بات کی اس زمانے میں کی تھی، اسد تور سے نہیں ہے، مطیع اللہ جان سے اس وقت، بلکہ میں کیس میں پیش ہوا تھا اس وقت. کیس میں پیش ہوئے تھے تو ذکر اس میں کیوں نہیں کر رہے؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ آج کے جو لائیو ایشو تھے تو 2023 کے میں نے ان کو ٹیک اپ کیا. اور اگر مائی لارڈ کمیشن بنائیں گے، آئی کنسنٹ بفور یور لارڈشپ کہ ان کے نام بھی ایڈ کر دیں گے کہ کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کیسے ری اپیئر ہوئے، کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. ایوری ون شوڈ بی. شعیب صاحب آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جو کہ آ کر کے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے اٹھایا یا غلط طریقے سے اٹھایا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے چلا گیا. ہو سکتا ہے دباؤ میں بیعت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، مگر اب وہ 2 جرنلسٹ جو اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو عمران ریاض بھی کھڑا ہے سر. نہیں وہ نہیں، آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ جی میں واپس آ گیا بس، لیکن اس کے بعد تو اس کی حالت ہی نہیں تھی نا سر. سن تو لینا، جو 2 جرنلسٹ جن کے نام آپ نے پھر ریلکٹنٹلی لے لیے ہیں عدالت میں، وہ تو یہ نہیں کہہ، سن تو لینا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ناردرن ایریاز گیا ہوا تھا یا مجھے کسی نے آ کے گھر میں پٹائی نہیں کی. وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے نا سر. They should be on the top of the list. ہے نا سر. Once you pick and choose, then
we ask you a question कि why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए. जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में. So happened I was one of the members of that bench, and we took notice. And whose government it was, and proceeded against us that a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों. मैं तो उस वक्त देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे. हर जुल्म पे खड़े हो जाइए. ठीक बात है सर. मैं तो योर लॉर्डशिप एज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, इनको सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं. नहीं, हमने बाकियों को भी शामिल आज लाए ना पिटीशन. जी, कुछ लोग पिटीशन लाए थे, डायरेक्ट साफी लाए थे अदालत में. वो पिटीशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया. मैं नहीं था उसमें सर. नहीं, आप मैं किसी साइड पे नहीं था उस वक्त. आप किस पार्टी में हैं आजकल? सर मैं तो सिर्फ एक गुजारिश नहीं, आप किसी पार्टी में हैं? जी, मैं पीटीआई में हूँ. तो किसकी हुकूमती जो चलने नहीं दी पिटीशन? मैं ऐसा ना करें सर. ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का कोई ताल्लुक हो नहीं सकता. अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा. बिल्कुल ठीक बात है सर. अगर आप कहें नहीं, मैं तो नहीं मानना अपनी गलती, दूसरों पे बस करूंगा. सर नहीं, मैं तो वो पहला आदमी हूँ जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की गलती है तो मैं सबसे पहले एडमिट करूंगा. आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे बहुत गलत था? सुन तो लेना. जी सर. जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौकफ था आपकी हुकूमत का उस वक्त? सर पहली बात तो ये है, मैं एक गुजारिश कर दूं. पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट अपीयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस. दूसरी बात सर, एतजाज इज आल्सो नॉट अपीयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी. हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में. माय लॉर्ड के सामने जो चीज जरा आप समझते हैं किसी के साथ भी ज्यादती हुई, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ, जिसने किया उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए. 100% हम एग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप कंडेम कर रहा हूँ. आप कंडेम करते हैं जब आपको एहसास दिलाया. मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को. जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे, आज भी कुछ और है. देखिए, मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, या तो आप सबके लिख देते जो आपके पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे. जिन दो जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है. कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है. पता नहीं, हो सकता है वो हो किसी एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पे तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट. मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं. पूरी बात सुने ना. जब हम लोग काम करते हैं, इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया. ठीक है, आज अगर आप कहें कि मुझे, मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई. तो फिर आपकी पिटीशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा, हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है. ये ना करें. हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो. हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक हो, हमारे खिलाफ बयान दे या फेवर में दे. अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें. सर जो आजकल हो रहा है, मैं जनरल बात करते तो वो अलग है. सर तो मैं 2023 में बात करूंगा. अगर एक शख्स, जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा. नहीं, अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लौट उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना. प्रोटोकॉल क्या, मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा. अब हम आपको रोकेंगे. अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं. नहीं सर, नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया. मैं लौट अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे. जी, पेज 10 पे बताइए. जी सर, आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर, फिर मैं आ गया.
that Dr. Deen Mohammed Baloch, a Baloch physician and politician, has been missing for 14 years. He was affiliated with the Baloch National Movement. His family has filed a case with the police in Khuzdar and filed application in the Balochistan High Court. There has been no trace of him for years. More recently, Baloch students have been subjected to short-term disappearances, being picked up, kept in secret detention facilities, and released several days later. और my lord की judgment author judge the then Iftikhar Mohammad Sahab, Chief Justice, that in Constitution Petition number 77 of 2010, reported as 2012 as CMR 1958, the Supreme Court's original jurisdiction was invoked to protect the lives and properties of the people of Balochistan, to take all such steps to prevent target killings, abductions, kidnappings, and to deal with the issue of missing persons. In paragraph 49, subpara 3 of the judgment, the Supreme Court found there are prima facie serious allegations of the involvement of Frontier Corps, as it is evident from the report submitted by the Inspector General of Police that in every third case, the FC personnel are being named as accused regarding missing persons. This Honorable Court has noted in its order that on the face of it, there are serious allegations against the state in every third case of the missing persons. आप मेलोड जो मिसिंग पर्संस के बारे में जो फिगर्स जरा सी थोड़ी आप चीमा साहब का भी नाम बीच में नहीं है चीमा साहब भी मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं. I was Chief Justice Balochistan for 5 years, and we attended on a regular basis missing person cases. आप मालूम कर लें, आप कभी आए नहीं हमारे पास, और journalists of Islamabad did not like covering Balochistan for some reason, but every Tuesday we used to fix a date, and there were a number of recoveries. अब ये जो आप बात कर रहे हैं 14 साल पुरानी वगैरह, successive, every job is, the Supreme Court and the High Court job is limited to habeas corpus petitions, which we, with the High Court, Balochistan High Court, attended to. और आप मालूम कर लीजिए कितने disposal हुआ और कितने remain pending थे. Some cases we discovered were cases, there were genuine cases, and some were misuse of missing person cases. उसमें ये होता था कि person is on bail in a murder case, and on the day of announcement of judgment, वो he absconds और दूसरे दिन उनके भाई ने missing person के case की petition file कर दी, क्योंकि शायद अंदाजा हो जाता है which way the case is going to go, which way the case is thing. So there are these cases also. There were some cases of people going off on jihad, some place mistakenly. There were those cases also, but there were of course genuine cases as well, and a lot of people were recovered. So अगर हम specifically एक तो general issue पे हम deal कर सकते हैं. Specifically, तो I think where the thing happens, if it's Sindh, the Sindh High Court will probably be the best court. Because naturally it will be the police, the intelligence agencies of the province. It will be very difficult to monitor cases. But a general जो बात है ना, जो general बात है, वो Supreme Court probably is better place to attend to. अब for instance, आप मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी कोई इधर हुआ था, सिट-इन हुआ था जी, उसकी तो आपने जिक्र किया ही अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ सर. अभी इनसे वो उसका आपने पूरी पिटीशन में जिक्र ही नहीं किया. नहीं सर, वो हुए हैं, ये जो पुराने बलोच स्टूडेंट्स के साथ हुआ था उनका मैंने रेफरेंस दिया है. जो आज बैठे हुए हैं, ये पुरानी पिटीशन है मेरा एक नई फाइल कर देते. इसी में ही मैं गुजारिश आपसे करता हूँ. मैं तो उनसे वादा करके आया था कि मैं आपका क्वेश्चन लेके जाऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में. सर, यहाँ भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, उन्होंने उनके साथ बड़ी ज्यादती की. उनको उठा करके बच्चे बच्चियां उनको रात को तशद्दुद किया उठा के. अगर आप इतनी जहमत की एक और पिटीशन फाइल कर देते तो कम से कम फैक्ट्स हमारे सामने आ जाते. मैं कर देता हूँ सर. अब हम मफरूजों पे तो नहीं चलेंगे ना, अदालत है तो
तो तरीकेकार होता है, अगर हम किसी को नोटिस भी करें तो वो कुछ को पता तो हो ना कि हमने किस चीज का जवाब देना या है। इसी में माय लॉर्ड मैं सीएम फाइल कर देता हूँ, नहीं, नहीं, बिकॉज़ जनरल तो इसी के मुतालिक सारी चीजें हैं। नहीं, मगर इन देखिए ना, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस अच्छा नहीं, आप अपना पिटिशन खत्म करें, फिर हम उनसे, हम ना जंजुआ साहिबा से जी सर। पूछते हैं। जी सर, मैं क्योंकि सिर्फ वो बिला तफरीक सबके लिए आवाज उन्होंने बुलंद की है, आपने कुछ तफरीक रखी है। नहीं सर, मैं तो नहीं, आपने कुछ मान लीजिए थोड़ा, लेकिन मैं मानता तो मैं कर रही है, किया है आपने। वो अनइंटेंशनल हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि मैं इंटेंशनली उनको ना रखूं और इनको रखूं सर। तो इस पे सर मैं जो जनाब के सामने पैराग्राफ 18 भी मैं पढ़ के 19 फिर मैं उस पे आता हूँ। पैराग्राफ 18 जी, दैट एक सेकेंड, पैराग्राफ 18 पेज कौन सा? पेज 8 पे मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक छोटा सा पैराग्राफ में था। नहीं, वो मैंने पढ़ लिया। जी आपने कर लिया। हाँ। इसमें पैरा 19 फिर मुझे इजाजत दें पढ़ने की। That despite the orders of the Supreme Court, the practice of enforced disappearances continues in Balochistan even today, with citizens disappearing and reappearing at the whims of the state. The federal government has not complied with the order of the Honorable Supreme Court. The entire province is slowly but surely being alienated through such practices. अगर सर अब मैं फिगर्स को पढ़ना चाहता हूँ, फिगर्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स दैट रिसेंटली द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर claimed that as per a subcommittee of the United Nations, around 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. The claim is not backed up by the official figures, even otherwise, since the caretaker prime minister has accepted that at least 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. Where are these people? Which detention facilities have they been kept in? Under what law have they been detained? And why are they not being produced before a court of law? एक सवाल आपसे जरा पूछ लूं मैं, ये कोई लिस्ट आपने लगाई है कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं और ये कौन से पीरियड में मिसिंग हुए हैं? सर मैंने रिलाय जो किया है, नहीं, कोई लिस्ट आपने लगाई है हमारे सामने के जी फलां शख्स इस तारीख को मिसिंग हो गया? सर जो तो इनमें अब ये हमें नहीं पता, ये 10, क्योंकि एक जगह आपने लिखा है 14 साल से मिसिंग है। अब 14 साल में कौन सी हुकूमत थी, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे? तो हम अगर एक चीज हो ना कि जी अगर वो डेट वाइज अगर नाम हमारे पास होते तो फिर हम कंसर्न लोगों को, हो सकता है उसमें आपकी हुकूमत का पीरियड भी आ जाए, हो सकता है किसी और हुकूमत का भी पीरियड आ जाए, तो वो पता चलेगा ना कि डेट वाइज, नेम वाइज और डेट वाइज। क्योंकि आपका कहना ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की 50 की, ये गलत है, इससे फिगर कहीं ज्यादा है। हो सकता है आपकी बात बिल्कुल 100% सही हो, मगर हमें तयन कैसे करेंगे इस बात का? एक नाम होगा ना, कोई मिसिंग होगा तो उसका भाई, बेटा, बाप कोई आके कहेगा ना मेरा शख्स मिसिंग है और बताएगा फला तारीख को मिसिंग है, तो ऐसी कोई लिस्ट बनी है आज तक? जी सर, मैं उसी में अर्ज ये भी एक बता दीजिए पैरा 11 में, एक मिनट, ये जो आपने खुद फिगर दिए हुए ना पेज 10 के अंदर, जी ये कमीशन की जो रिपोर्ट है, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2002 7001, ये डिस्पोज ऑफ क्या है? ये रिकवरी हुई है 7000 की? यही मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि रेस्पोंडेंट नंबर 11 ये कमीशन है, कमीशन आके सारा रिकॉर्ड वो पेश करेगा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं होगी। 7001 का मतलब ये 7001 जो मिसिंग पर्संस वर रिकवर्ड, और क्या है ये? जी सर, मैं इसी पे लिखा हुआ है सर, केसेस रिसीव्ड अप टू दिसंबर 22 9203, केसेस रिसीव्ड रजिस्टर्ड इन जनवरी 2023 91, टोटल नंबर ऑफ केसेस उनके पास जो गया 9294, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू 2022 7001। अब ये डिस्पोज्ड ऑफ में ये सिर्फ रिपोर्ट तो फिर वो देंगे कि क्या कोई बंदा मिला नहीं, या मिल गया तो रिकवर हो गया, या किसी मुकदमे में इन्वॉल्व था। ये कौन सा कमीशन है? ये कमीशन सर जो रेस्पोंडेंट नंबर 11 इसका पहला पेज है, इसका दूसरा पेज क्यों नहीं लगाया आपने? ये इसका, ये जो आपने प्रिंट आउट लिया है कहाँ से लिया है? ये पूरा में दिखाए ना किसने ये इशू किया है? 1 फरवरी 2023 की जो रिपोर्ट है ना, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है उसकी कमीशन, ये आपने वेबसाइट का जिक्र तो किया है, मगर वो पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये आप जरा देखें, वेबसाइट पे खोलिए, ये जो आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, डायरेक्टरेट जनरल सिविल डिफेंस बिल्डिंग, इस्लामाबाद, इसका वेबसाइट है coioed.pk।
नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए ना, ये किसने इशू किया है डॉक्यूमेंट? उनके मैं देखता हूँ, कौन है कमीशन के अब हेड? या ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको दोबारा रिन्यू किया है सर, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब. He is also a respondent number 11 मैंने इनको बनाया है सर. you want him changed? You're satisfied with him? मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रॉपर कमीशन है वो बने, ताकि वो प्रॉपरली ये जो अभी इस वक्त मिसिंग पर्सन हैं उनके इश्यूज को टेकअप करे, और डेटा जो है वो लेने के लिए मैंने रिकॉर्ड के लिए इनको रिस्पॉन्डेंट नंबर 11. ये आपकी हुकूमत ने इनको अपॉइंट किया था? नहीं सर, ये तो 2011 में पीपल्स पार्टी के जमाने में प्रॉब्लम. आपकी हुकूमत ने इनको चेंज कर दिया? किसी हुकूमत ने चेंज नहीं किया आज तक. नहीं, हम आपसे जो सवाल पूछते हैं उसका आप जवाब नहीं देते सर. नहीं, मैंने वही कहा ना, जनाब ने मेरे से पूछा तो इसलिए. वो जब तक पाकिस्तान में वो मैं जुमला दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा सर, the truth will set you free. बिल्कुल ठीक है सर. मैं वो जो सच होता है वो सबके सर सच उसी का होगा. बता रहा हूँ सर. 11 से लेकर आज तक 23 तक विदाउट चेंज, आज तक वो कोई एक You were thoroughly satisfied with his working, correct? देखिए, जिम्मेदारी लीजिए ना. मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता सर. नहीं लेंगे जिम्मेदारी. मैं केस तो खारिज करा सकता हूँ, गलत काम की हम आपका केस खारिज भी नहीं करने देंगे. हम इंशाल्लाह इस मसले का हल भी ढूंढेंगे. इंशाल्लाह, यही हमारे जनाब से एक्सपेक्टेशन है. ठीक है. जी सर. देखिए, ये पाकिस्तान सबके लिए है. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. और इतनी जो नफरतें बढ़ गई हैं, ये जब तक हम मुश्तरका तौर पे इसको खत्म ना करेंगे जी सर, कुछ नहीं होगा. ठीक है. एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे, वो बात पता नहीं कब से चली आ रही और चलती रहेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा. ठीक है. ये सर पेज पूरा पेज 91 पे लगाया हुआ है. अगर हम अपने पे भी उंगली रखें और दूसरों पे फिर बेहतर अच्छा लगता है ना. बिल्कुल ठीक है. बाद में वजन भी बढ़ती है थोड़ी सी. जी, अब आप कौन से पेज पे बता रहे थे? सर ये पेज 91 पे है, जो जनाब ने फरमाया था ना कि इनको वो पूरा प्रिंट निकाल दे. पेज 91 पे पूरा लगा हुआ है सर, वो उसका जो वेबसाइट से निकाला गया. अच्छा, ये इसमें में जो ब्रेकअप ऑफ दी ये है. नहीं, मैं सिर्फ चाह रहा था कि एक अगर पूरा में ऐसा वो आ जाए ना, उसको क्या कहते हैं, लिस्ट, नामों की लिस्ट. ये यही रिस्पॉन्डेंट नंबर 11 देगा सर. आपके पास देगा? आपने उनको एक खत लिखा? नहीं सर. देखिए, अब यही तो बात है ना. अब आर्टिकल 19A जरा पढ़ लें. नहीं, पढ़ लेते हैं हम आपके साथ. जी. अब वो मसला ये हो गया कि कोई काम थोड़ा सा कभी कर लें तो अच्छा होता है सबके लिए. आर्टिकल 19A पढ़िए. 19 है, फिर वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी तो है. बिल्कुल, वो बल्कि कमिश्नर भी है यहाँ. अलग है, यू कैन अप्लाई. बल्कि इस्लामाबाद में कमिश्नर भी लगा हुआ है. जी सर. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. आपने कोई चिट्ठी लिखी कमीशन को कि मुझे बराए करम इनके नाम की लिस्ट दे दीजिए? नहीं सर, मैंने उनको रेस्पोंडेंट बना दिया इसलिए कि ताकि वो सारा रिकॉर्ड. अभी आपने शायद हमारा जजमेंट नहीं पढ़ा. सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर खिलाफ अपने ऑर्डर कर दिया है कि जी इंफॉर्मेशन मांगे हम देंगे आर्टिकल 19A के तहत. ठीक है, दिया इंफॉर्मेशन जो एक साहब ने मांगा, हमने दे दिया उनको. तो आप भी थोड़ा सा अगर मांग लें उनसे, शायद आपको मिल जाता, हमारा काम आसान हो जाता कि वो बता देते कि जी ये लिस्ट है लोगों की, ये आदमी फलां तारीख को मिसिंग हुआ है, ये फलां तारीख को मिसिंग हुआ है. तो फिर जरा सा एक जनरल सी बात जो हम कर रहे हैं ना, तो जरा हमें भी मदद मिलती और मसले के हल तक हम पहुंच भी पाते. ठीक बात है. तो ये आपने मुझे क्या दिया है? हाँ, भी लिस्ट है. तो वो कब से तारीख, डेट्स भी लिखी हैं उसमें या नहीं? ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, तो वेबसाइट पे अवेलेबल उन्हें रखा हुआ है. प्रिंट निकाल के जमा करा सकते हैं. नहीं, डेट लिखा है, डेट वेंट मिसिंग. कब से कब शुरू होता है? डेट वाइज है या नेम वाइज है, कैसे? या रैंडम है?
नहीं, डेट पर्सन वेंट मिसिंग ऐसा है या नहीं है? 2002 से 2001 से 2001 तो कितने साल हो गए? 23 साल 23 साल 3 years. तो इसमें आप कितनी दफा मिनिस्टर रहे? ये जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगी। जी ठीक है। अब एक मिनिस्टर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकती है तो मिसिंग पर्सन्स की कैसे हिफाजत करेंगे? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि फेडरल मिनिस्टर्स बिल डिसअपीयर्स एंड द फेडरल मिनिस्टर इज नॉट बॉदर्ड। पूरी असेंबली को बॉदर दुनिया भर करना में चाहिए। एक चीज होती है रेजिग्नेशन। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक वो शायद वो रिवाज नहीं है। रिवाज शुरू नहीं हुआ है ना। अभी तक फिर आप काम नहीं कर सकते हैं तो किसी और को करने पे काम करके दिखवाइए। जी पूरी नेशनल असेंबली की जिम्मेदारी थी कि उनका एक बिल है वो क्या है। आपने इतना सीरियस एलिगेशन लगा दिया सेनेट पे, चेयरमैन सेनेट पे, और वो चलिए मुखालिफ पार्टी के होते तो फिर भी समझ आता है कि जी उन्होंने दबा दिया मेरा बिल, मगर वो भी आपकी तवस्सुत से चेयरमैन बने तो फिर जरा आप जिम्मेदारी भी कबूल कर लें थोड़ी बहुत, या फिर कहते कि ये चेयरमैन तो हमारे खिलाफ है तो इसको फिर मूव कर देते। मेजोरिटी तो थी आपके पास सेनेट में, अभी भी शायद सेनेट में आपकी मेजोरिटी है। नहीं सर मेजोरिटी नहीं। अच्छा तो खैर उस वक्त तो होगी ना। उस वक्त भी नहीं थी मेजोरिटी, उस वक्त भी नहीं थी। बगैर फिर मेजोरिटी भी के आपने चेयरमैन बनवा फिर भी लिया। वो चेयरमैन के खिलाफ अदम इत्मीद बगैर आया। मेजोरिटी के आपने चेयरमैन बनवा लिया। वो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी था, फिर पीपल्स पार्टी वाले उसके खिलाफ लेकर आए, बल्कि सब मिलके लेकर आए उसके खिलाफ अदम इत्मीद की रेजोल्यूशन पास हो गई। दूसरी दफा पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया था Probably पता नहीं कैसे आप जी। बहरहाल वो रेजोल्यूशन पास होगी 64 वोट से आई थिंक, और जब उनके खिलाफ खुफिया वोटिंग हुई वो नाकाम हो कौन गई। खड़ा हुआ था चेयरमैन के इलेक्शन में? उनके मुकाबले में था यूसुफ रजा गिलानी साहब आई थिंक। नहीं बिजंजो साहब नहीं थे। यस यस आई एम सॉरी, हाँ बिजंजो साहब थे, मरहूम जो फौत हो गए, हासिल बिजंजो आई थिंक ही वाज। हाँ हासिल बिजंजो था। यस यस मेजोरिटी तो उनके पास थी। मेजोरिटी उनके पास, रेजोल्यूशन पास हुई, वो पास हो गई कि ये रेजोल्यूशन पुट होनी चाहिए, 62 या 64 वोट्स मिले। जब वो खुफिया वोटिंग हुई वो रेजोल्यूशन नाकाम हो गई, वो अदम इत्मीद नाकाम हो गया। तो वोट भी मिसिंग हो गए। वोट भी मिसिंग हो गए और फिर कमेटी बनाई उन्होंने ही 64 वालों ने कि हम में से किसने वोट नहीं दिया। वोट भी मिसिंग हो गए, बिल भी मिसिंग हो गई। तो लोग तो पहले से मिसिंग हैं। का केस है, कई और मिसिंग चीजें भी आ जाएंगी सामने। लोग तो पहले से मिसिंग हैं, अब हम तो सिर्फ लोगों की हद तक फॉर द टाइम बीइंग हम कर रहे हैं। ये देखिए एक चीज की कड़ी दूसरी चीज से मिलती है। बिल्कुल है। या तो आप कहें नहीं मिलती है, रैंडम है। अब आपका मिसिंग पर्सन का जो बिल था, यकीनन जो पढ़ने में आ रहा है एक अच्छा बिल था, तो वो गायब हो गया। तो ये भी कनेक्टेड तो है, आप एक चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। फिर आपने चेयरमैन भी अपना सिक्योर कर लिया। अपना नहीं हमें सर, नहीं पता, हमें अपना कैसे नहीं है ना सर, जिनका है वो उनका है। गुड लक टू यू। जिनका है वो उन्हीं का ही है, अल्लाह उन्हीं को ही नसीब करे। नहीं ये बात नहीं है ना। देखिए या तो आप कहें कि जी ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको पोज किया है, ये नहीं हो सकता है कि जी जब मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, तो बस फिर ठीक है, बाकी बातें गलत हैं। तो जिम्मेदारी जब तक कबूल, देखिए शोएब शाहीन साहब, गलतफहमी भी तो हो सकती है। दिस इज अ न्यू ईयर, ठीक है। ये अगर मुझे पहले पता था तो शायद ये केस कल लग जाता, मगर मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं गलती से काफी अरसे बाद में छुट्टी पे गया, तो कि जरा रिफ्रेश हो जाए मेंटली इंसान। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो फिर ये हमने फौरन टेकअप किया। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है ना। हमें आपसे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, इवन दोज who may have other points of view, ठीक है ना। अब चले मजीद आगे बढ़ते हैं, और आप क्या चीज की निशानदेही करना चाह रहे हैं? जी सर, बस मैं ये मेनली ये 91 पेज पे जो ये है, तो इसके बारे में भी जो इस वक्त उनकी अपनी रिपोर्ट है, 2256 जो रजिस्टर्ड है उनके पास केसेस, वो मिसिंग है बकौल उनके। मतलब ये मिसिंग कोई इस मौजूदा गवर्नमेंट में हुए हैं? मैं हमें सिर्फ डेट्स में देखना चाह रहा था कि ये, क्योंकि आपने कहा 2011 कौन सा 2001, तो वी कांट होल्ड द पर्सन इन चार्ज टुडे फॉर 2001। ठीक बात, ठीक है, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो
हम देखना चाह रहे हैं कि अब कितने मिसिंग हैं, इस गवर्नमेंट में कितने मिसिंग हैं, पिछली गवर्नमेंट में कितने मिसिंग हुए, उससे पहले वाली गवर्नमेंट में कितने मिसिंग है। ईयर वाइज डेटा देना चाहिए, ईयर वाइज, तो फिर फिर सही पता चले। हम जो तो या वेबसाइट तो पे फिर available अगर फिर लोग मिनिस्ट्री तो एंजॉय करें, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एंजॉय करें और कहें जी सब काम कोर्ट का है, हम तो लोगों को ढूंढ के नहीं निकलवा सकते हैं, हम भी तो सरकार के तवज्जुद से करेंगे ना जी कि भाई जिसको आईजी को दें हुक्म या एसएचओ को दें, ऐसी होगा ना। हमारे पास कोई अपने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो बैठे हुए नहीं कि जाके लोगों को दरियाफ्त करके आए, ऐसी तरीके कार ऐसी मुल्क चलते हैं। तो जब तक ये जिम्मेदारी या तो तस्लीम करे ना कि हमारे जमाने में इतने मिसिंग हुए, ये कोई करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, जो तो नहीं डेटा अवेलेबल आपकी फ्रॉम द हुकूमत के वेबसाइट जमाने में कोई मिसिंग हुआ पर्सन या नहीं हुआ? मेरे सर नॉलेज में नहीं है अभी, तो जो कुछ मेरे तो पास ऐसी- रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में सिर्फ वो ऑफिशियल इसीलिए आपसे रिकॉर्ड पेश कहा कर ना रहा कि हूँ। जब ईयर वाइज डेटा आप देंगे तो फिर आपके एफर्ट्स भी पता चलेंगे ना कि जो तो सर वेबसाइट से आपने उसके लिए क्या किया, जी मतलब सर। क्या एफर्ट्स। जो तो वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं जमा करा दूंगा। नहीं, आप जो देख नहीं पाएंगे। अवेलेबल होगा अब जैसे मैं मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, इनको हम होल्ड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल टू देयर टेन्योर। नेचुरली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्लियर टेन्योर। कहेंगे जी मैं तो नहीं था उस वक्त, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, तो हम इनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये शख्स आपकी टेन्योर में मिसिंग हो गया, बताइए। वो ये तो बात सही है आपकी, अगर जो लोग आपके टेन्योर में मिसिंग हुए वो पे शायद आप हमें थोड़ी बता सकेंगे कौन लोग हैं। और फिर पुराने टेन्योर में 2001 आई डोंट नो कौन कौन सी गवर्नमेंट्स थी। दिस thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved. बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। some I know are not genuine missing persons, they've been made missing person cases for other reasons. लोग चले जाते हैं जहाज पे, कुछ और तंजीम में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो रिवाज है ना पाकिस्तान में तंजीम ज्वाइन करने का, ये कहीं दुनिया में नहीं होता है। अपने लोगों से कोई जंग नहीं लड़ते हैं। ये भी एक अजीब सिस्टम शुरू हो गया, ये भी खत्म होना चाहिए। प्राइवेट आर्मीज आर टोटली इलीगल बैंड, बट पीपल आर किल्ड, मर्सिलेसली किल्ड, एंड हु किल्स देम, उनका भी जिक्र आप नहीं करते हैं। आपको पता है लोगों ने कत्ल भी किए हैं। ठीक बात है। आपको पता है जजेस कौन कत्ल हुए? फॉर अ लॉयर टू नॉट टू मेंशन द नेम ऑफ अ जज इज सरप्राइजिंग। इनको मर्डर किया। जी जी, फेडरल कोर्ट चीफ जस्टिस बल्कि इत्तेफाक के नाम बाद बताएं। नूर मोहम्मद मस्कान जाई साहब, वो हमारे बड़े काबिल एहतराम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी कितने थे। और रेफरेंस पढ़े आपने उनके लिए? बहरहाल हमने दुआ की। किसने उनको मर्डर किया? दहशतगर्दी थे नेचुरली। किसी तंजीम ने नाम लिया, हमने किया। अच्छा, मेरे वो नॉलेज में नहीं था। क्यों नहीं है नॉलेज में? जो हमने तो उनको दहशतगर्द समझ के। आप इतने सीनियर वकील हैं, ही रिमेन चीफ जस्टिस ऑफ 2 कोर्ट्स। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है, so very honorable man sir, we have a lot of whatever respect he for is, the fact is that he was a chief justice of 2 courts, my lord, not remembered. Why? ये भी हमें चीजें देखना होंगी ना, and that is not, surely you're not blaming the state for that. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, I went and you know where he was murdered? आपको पता है कहाँ मारा गया उनको? आई थिंक तुर्बत या पता नहीं कौन सा एरिया, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। वो एरिया तो मुझे ये जगह का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मस्जिद में थे, नमाज पढ़ रहे थे अपने घर के सामने की मस्जिद में थे। मैंने बल्कि उनके और बेटे से भी दुआ की। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो खुद गया था। जी जी साहब, बल्कि उनको मस्जिद में मारा गया और वो पढ़ रहे थे नफिल। सब लोग चले गए थे, तो वो और उनके ब्रदर इन लॉ थे साथ। बल्कि इत्तेफाक से उसी दिन उनका कोई गार्ड वार्ड छुट्टी पे था या जो भी। नहीं, गार्ड वो खिड़की से उन्होंने मारा। वो हर आदमी, मेरे ख्याल में तो गार्ड होने ही नहीं चाहिए, लोग महफूज होना चाहिए। मगर ये जो फीलिंग्स है ना, ये क्यों है? देखिए, ये भी तो, ये मुल्क के दुश्मन नहीं है लोग जो कत्ल करते हैं। बिल्कुल दुश्मन है सर। तो ये देखिए, ये जरा सा ये बातों को भी जरा मद्देनजर रखें ना, कि ये चीजों को अब उनका, क्योंकि वो शायद हमारे चीफ जस्टिस थे या फेडरल शरीयत कोर्ट के, तो कोई
नहीं मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि कोई अच्छे रेफरेंसेस हुए या नहीं हुए। बट चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करें क्या, ये मुझे बताएं, जरा फोकस करें अब आप। जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो यही है कि जो नोटिसेज हैं इन सबको किया जाए, और हमारी जो गुजारिशात हैं बिफोर योर लॉर्डशिप, जो इन द शेप ऑफ द प्रेयर्स जो मेरी हैं माय लॉर्ड, उसमें मैं आना चाहता हूँ। दीस आर द बैकग्राउंड्स। Para 2 say, declare the enforced disappearances are violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution. Declare the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances does not adequately comply with legal and international standards. Direct the formation... शोएब साइन साहब, सॉरी मेरा ये इम्पोर्टेंट केस है, वो एक और इम्पोर्टेंट केस लगा हुआ है 11:30 बजे वाला। Shall we continue with this matter tomorrow? जी बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है आपके लिए, कल कोई और है? हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि वो हमने दूसरा। ठीक है, तो अगर हम इसको कल को 11:30 बजे बेंच तो नहीं है, तो देखें ये सीरियस मैटर है, वी वांट टू गिव यू प्रॉपर हियरिंग। जी ठीक है सर। ठीक है, मगर आप एक चीज जरा से हमें बताइए कि हमारे भी लिमिटेशंस हैं एज अ कोर्ट, क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बुलेट पॉइंट्स बना लें कागज पे, ठीक है सर, ठीक। तो भाई हम वंस एंड फॉर ऑल, और आप इस आमना जंजुआ से खास तौर से पूछिए क्योंकि वो शुरू दिन से ये कर रही इस मसले पे लगी हैं और वो उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है, यहाँ जहाँ तक हमें पता है। आपकी कोई वाबस्तगी कोई सियासत पार्टी तो नहीं है ना? नहीं, तो ये इनकी कोई वाबस्तगी नहीं है, ठीक है। इनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो किस नौयत के हम ऑर्डर पास करें, किसको क्या करें, ठीक है। तो जरा से ये आप चीजें जरा सोच लें। जी ठीक है। तो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह whatever we can do, but we should all, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसला हल होगा जब हम सब मिलकर करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि दूसरे पे उंगली उठाएं और मुझ पे मैं तो ठीक हूँ बस दूसरा है। और तीसरी बात, अगर आप बुरा ना माने, इसको सियासी बात ना बनाएं। सर सियासत तो हम नहीं बनाते, लेकिन कोई इंसान अभी आपकी बुरा ना माने, आपकी पिटिशन में सियासत झलक रही है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपने देखिए कुछ लोगों का जिक्र किया है और कुछ लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, ठीक है। तो वो अगर इसको सियासी ना बनाएं। अब जी सर सियासी नहीं होगी, तो ये आपने जो नाम लिखे हैं वो लोग माशाल्लाह अच्छे असर रसूख वाले लोग हैं। अगर उनके मसले वो खुद आ जाएंगे हमारे पास, आप उनके कंधे पे बंदूक ना इस्तेमाल करें, उनका कंधा। आपका जेन्युइन इशू है मिसिंग पर्सन का, वील अटेंड टू इट। बिल्कुल ठीक है सर। हमने के पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल आप दूसरे स्टेजेस हैं आपके पास। पॉलिटिक्स भी अगर इबादत के लिए है, उस नियत से है, तो सबसे अच्छी चीज है। आज भी सेनेट है, नेशनल असेंबली नहीं है। आज आप भी जा सकते हैं सेनेट में, आप आज जाके खड़े होकर जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। पॉलिटिकल बातें वहाँ कीजिए, दूसरे फोरम्स हैं। मगर अगर हम समझेंगे कि पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहे हैं, हम वो सॉरी बुरा ना माने, इजाजत नहीं देंगे। नहीं सर पॉलिटिक्स नहीं, रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए होना चाहिए, आइन तो सबके लिए बराबर। तो फिर आप फिर फेयर नहीं हुए ना, आपने सिर्फ कुछ लोगों का जिक्र किया और कुछ लोगों का नहीं किया। वो अनइंटेंशनल सर हो सकता है, लेकिन हमने 2023 की जो आज प्रिवेलिंग इशू से हमने उनको टेकअप किया। अगर हम शुरू से जाएंगे तो मैं नॉट, जैसे जनाब के सामने 9000 मोर पर्सन है जो मिसिंग पर्सन में या जिनके साथ कोई ज्यादतियां हुई है, वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हाँ, हमने 2023 का कोई ये नहीं किया कि जनाब हमने पॉलिटिकल वर्कर्स को तो कहा, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं किया, ब्यूरोक्रेट्स को कहा, जर्नलिस्ट को नहीं किया। ये आप सरकार की तरफ से कौन है इधर? आप हैं? अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? हाँ आ रहे हैं। नहीं, आज ना बुलाएं, चले हम तो अभी उठ रहे हैं। नहीं, वो दूसरे केस में तो आएंगे, मगर कल आप जरा, अभी तक हमने नोटिस नहीं की है, मगर अगर वो सुने बातें तो जरा मुनासिब हो। अगर आप भी नोट जो हमने बातें की हैं वो भी आप हमें बताएं, और वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, with everyone's assistance, and let's stop name calling and resolve the matter. ठीक है, let's make Pakistan strong from within. If Pakistan is strong from within, no outside forces can touch it. ठीक है, तो ये जरा आप मद्देनजर रखें। अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलवा लीजिए और वो ब्रीफ भी कर दीजिए आज की हियरिंग के मुतालिक, और हाउ आगे हम इसमें कैसे चलें, ठीक है।
ये वो उस तरह से नहीं कि आप अपोज करें बस या उस तरह का पिटिशन नहीं है. दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट मैटर व्हिच वी हैव टेकन नोटिस ऑफ. इंशाल्लाह वी विल मूव टू रिजॉल्व इट. और दूसरी बात ये है कि ये जो यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था भी हो रहा है सर, बैठे हैं लोग. एक सेकेंड, इनके साथ अगर आप फैजाबाद धरना जजमेंट पढ़ लें, राइट टू प्रोटेस्ट हमने उसमें सिक्योर किया हुआ है. अनलेस द राइट टू प्रोटेस्ट एक्सीड्स वायलेट्स अदर पीपल्स फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है उसका बिल्कुल हक है. तो ये भी हमें शायद अभी तक कोई ऐसा मैटर हमारे सामने आया नहीं है, बट वी मे टच अपॉन इट. तो आप जरा उसमें भी तैयारी कर लीजिए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट कर दिया था मैटर जी. वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट हो चुका है ये मैटर. ये जो प्रोटेस्टर की बात कर रहे हैं जो तो इस्लामाबाद, उसका ऑर्डर पेश करिए. ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता था कि ये हो चुका है या नहीं, क्योंकि मैं आई वाज नॉट इन द कंट्री क्या हुआ. बट वी हैव टू रिजॉल्व दिस इंशाल्लाह विद एवरीवनस कोऑपरेशन. We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. इसमें फिर हम कल पे करेंगे. ठीक है, ये ठीक है. तो इसमें बस लिख दें पार्ट थर्ड ही कर देना. ये ठीक जी. बस एक ही लफ्ज लिख दें पार्ट थर्ड फॉर adjourn tomorrow at 11:30 बजे रख लें. ठीक. क्योंकि वो फिर रेगुलर बोर्ड चले. हाँ, 11:30 बजे रख लेते हैं. जी ठीक है सर. तो आपको भी जरा टाइम मिल मेरा जाए. एक कंटेम्प्ट का मैटर भी माय लॉर्ड ने कल पे लिए रखा है, एक कंटेम्प्ट पिटीशन आपने. इसके बावजूद कि आप हमें छोड़ के चले गए, हमने कहा लेंगे आपका केस और आप फिर नजर ही नहीं आए. जी सर, जनाब की मेहरबानी. देखिए, इसके बावजूद हमने आपका केस रखा. जी जनाब की मेहरबानी से. मगर मेहरबानी नहीं, मगर आप भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें ना. हम तो रिस्पॉन्सिबल है. मैं मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए. मैं थैंक यू सर.